Let us see next question. Supreme Engineering Limited has developed a new product with 10 years of the expected life. Market study conducted by the company has revealed a domestic as well as an export market exists for the product. यानी प्रोडक्ट का डोमेस्टिक मार्केट भी है, एक्सपोर्ट मार्केट भी है. It is also indicated that a small plant will be sufficient to cater the domestic demand. However, large plant will have to be built if export demand also has to be met. The exact magnitude of the export market is not known. The company has the option of building a small plant today and then after 3 years decide to expand. The company may decide to expand if the initial demand consisting of both domestic and export is high. Further, the company has two options vis-a-vis decision to expand. Small plant could be expanded to a large size or small plant could be expanded to a small size. Following summarizes the relevant data for the various options. Supreme Engineering Limited uses 10% discounting rate for evaluating the investment proposal. Highlight the portion draw decision tree to evaluate available different alternatives. तो ये हमको पूरा का पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है. अलॉन्ग विद दैट हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी उन्होंने रेडीमेड दे रखे. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू से गो थ्रू द क्वेश्चन और सिर्फ आप मेरे को डिसीजन ट्री बना के दो और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे आपसे. I want you to draw the decision tree. तो बेसिकली वी अंडरस्टैंड एट से मैं पहले आपको थोड़ा रफ में बना के देता हूँ, फिर मैं आपको फेयर में बना के देता हूँ. वी हैव टू स्टार्ट विद द वर्किंग लाइक दिस दैट वी हैव टू डिसाइड whether to start the business or not. That is what say we have to start. So we have basically options like this. We may install large plant और वी में इंस्टॉल स्मॉल प्लांट. ऐसा करके हमारे पास दो ऑप्शन है. एंड ऑफ कोर्स तीसरा एक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ये होता है दैट से वी डू नॉट स्टार्ट द बिजनेस, क्योंकि अगर दोनों ऑप्शंस का एनपीवी नेगेटिव है तो मतलब नहीं है भाई. इसलिए हमारे पास क्या होगा दैट से द लार्ज प्लांट, स्मॉल प्लांट और वी डू नॉट स्टार्ट. लार्ज प्लांट में क्या होगा वो हमको दे रखा है पहले 3 साल का. द डिमांड में बी हाई, डिमांड में भी लो. स्मॉल प्लांट में भी क्या दे रखा है, डिमांड में भी हाई एंड डिमांड में भी लो. ऐसा करके हमको ऑप्शन दे रखा है. अगर डिमांड हाई हुआ देन इन दैट केस वी अंडरस्टैंड दैट से वी हैव से द दिस इज हाई, दिस इज लो, this is high, this is low. If at all that's the demand is high, then in that case we require to decide whether to expand the business or we should not expand the business. देखो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज हमको ऐसा दे रखा है दैट से the company may decide to expand if the initial demand consisting of both domestic and export is high. Further, the company has two options vis-a-vis decision to expand. Small plant could be expanded to a large size or say the small size. ऐसा हमको दे रखा है. I'm sorry, यहाँ पे लार्ज में नहीं है एक्सपेंशन. लार्ज में तो सिर्फ हम लोग हमारा बिजनेस खत्म ही करेंगे. लार्ज में तो हम लोग सिर्फ हम बिजनेस खत्म ही करेंगे. अगर हम लोगों ने स्मॉल प्लांट इंप्लीमेंट किया एंड सो द डिमांड इज हाई, देन इन दैट केस वी आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेदर टू एक्सपांड और डू नॉट एक्सपांड. इफ एट ऑल वी आर एक्सपांडिंग देन इन दैट केस अगेन वी हैव टू चॉइसेस, either to expand by large size or to expand by small size or do not expand. I repeat it again. That's we understand. हाँ वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है. We understand that say if at all we have implemented small plant and the demand is high, then in that case we are having so that
options like this, हाँ यहाँ पे whether to expand by large size or expand by small size or do not expand, ऐसा करके हमारे पास choice है. If at all the demand is low, then in that case there is no question of expansion. In that case we don't, that is we are not having say any say the decision to expand. ऐसा करके हमको decision tree बनाने का है. तो इसका भी मैं थोड़ा बराबर से decision tree बनाता हूँ, आप लोग भी बनाइए. The first option is install large plant. उस केस में हमारा डिमांड क्या होगा, उसका अनसर्टेनिटी है. There may be high demand and there may be low demand. That is for the first initial 3 years. उसके बाद later 3, that is later years के लिए भी ऐसा ही है. अगर हम लोग लार्ज प्लांट इंस्टॉल करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 50 lakhs का. डिमांड वुड बी हाई और डिमांड वुड बी लो. प्रोबेबिलिटी उसका दे रखा है 0.6 एंड 0.4 और कैश फ्लोस हमको दे रखा है 10 lakhs एंड 8 lakhs. उसके बाद बाकी के जो साल है उसके लिए वापस हमको ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा है. Either the demand is high or the demand is low. उसका प्रोबेबिलिटी हमको दे रखा है 80% और 20%. कैश फ्लोस हमको दे रखा है 12 lakhs और कैश फ्लोस हमको दे रखा है 10 lakhs. यहाँ पे प्रोजेक्ट बंद हो जाता है. लो डिमांड है, इन दैट केस द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. The demand would be high or the demand would be low. हाई डिमांड का प्रोबेबिलिटी है 0.2 एंड 0.8. कैश फ्लोज हमको दे रखा है, इट इज 8 lakhs एंड 6 lakhs. तो ये लार्ज प्लांट का हुआ. स्मॉल प्लांट, इन दैट केस हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा 20 लाख का. हमारा इनिशियल बिजनेस क्या होगा उसका अनसर्टेनिटी है. देयर विल बी हाई डिमांड और देयर मे बी लो डिमांड. हाई डिमांड का चांसेस है 60% और उसमें कैश फ्लोस हमको मिलेगा 4 lakhs का. लो डिमांड का प्रोबेबिलिटी है 40% और उसका कैश फ्लो मिलेगा हमको 3 lakhs का.
अगर लो डिमांड है then in that case there is no question of expansion. High demand है then in that case we are required to decide whether to expand or not. तो एक ऑप्शन है एक्सपांड बाय लार्ज साइज, दूसरा ऑप्शन है एक्सपांड बाय स्मॉल साइज, और तीसरा ऑप्शन है दैट्स ए डू नॉट एक्सपांड. ऐसा करके हमारे पास तीन चॉइसेस है. अगर हम लोग लार्ज साइज से एक्सपांड करेंगे तो उसमें कितना लगेगा इन्वेस्टमेंट? 30 lakhs का. एक्सपांड करेंगे देन इन दैट केस क्या आउटकम होगा उसका अनसर्टेनिटी है. एक्सपांड बाय लार्ज साइज का कैश फ्लोज हमको दे रखा है. इट इज 30 and 9, 13 and 9, आई एम सॉरी. हाई लो 13, 9 और उसका प्रोबेबिलिटी हमको दे रखा है 0.8 and 0.2. इट इज हाई लो वंस अगेन. एक्सपांड बाय स्मॉल साइज में उसमें हमारा कैश फ्लोज होगा 7 and 5. उसका प्रोबेबिलिटी है वापस 0.8 and 0.2. अगर हमने स्मॉल प्लान किया, हाई डिमांड आया और हमने एक्सपांड नहीं किया, ठीक है ना? आई होप एवरीबडी इज क्लियर. 1-2 मिनट के लिए सब लोग ध्यान दो. स्मॉल प्लान इंस्टॉल किया, हाई डिमांड आया और एक्सपांड किया तो क्या होगा ये यहाँ पे, और एक्सपांड नहीं किया तो क्या होगा वो यहाँ पे दे रखा है. उसमें हमको दे रखा है अगेन हाई एंड लो. उसका हमको दे रखा है इट इज 80, 20 and 4-3. अगर लो डिमांड आया देन इन दैट केस एक्सपेंशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. उस केस में हमारे कैश फ्लोज क्या होंगे वो भी दे रखे हमको. इट विल बी 20-80, कैश फ्लोज होगा 3 and 2. जैसे हमने डिस्कस किया था नंबरिंग के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो हम नंबरिंग कैसे भी दे सकते हैं. सॉरी मैं भूल गया, डू नॉट इंस्टॉल.
So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, D1 and D2. Chalo, you just write in rough that what would be the sequence in which you will solve the question. फिर मैं आपको बताता हूँ. So let us have understanding कि sequence यहाँ पे क्या होगा. तो we understand that over here हम लोग क्या कर सकते हैं, we are having certain options with which we can do the answer. हम लोग EMV at 1 कर सकते हैं, EMV at 2 कर सकते हैं, EMV at 4 कर सकते हैं, EMV at 5 कर सकते हैं, EMV at 6 कर सकते हैं, EMV at 7 कर सकते हैं. उसके बाद we don't have any choice but to do EMV at 3, that is 3 हम लोग करेंगे. उसके बाद हम लोग D2 करेंगे. उसके बाद हम लोग EMV at 8 करेंगे और उसके बाद हम लोग D1 पे डिसीजन लेंगे. बेसिकली फ्रेंड्स EMV at 3 के पहले 1 and 2 का सोल्यूशन होना जरूरी है. उसके बाद D2 के लिए EMV at 4, EMV at 5, EMV at 6 होना जरूरी है. EMV at 8 के लिए EMV at 7 होना जरूरी है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द लेटर नोट्स का जो वैल्यू है ना वो मेरे को अर्लियर नोट्स पे चाहिए, अदरवाइज तो मैं वो डिसीजन ले सकता नहीं. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेल मी ओनली D2 का आंसर. मेरे को कुछ ज्यादा आप करके मत दो, सिर्फ D2 का आंसर करके दो मेरे को. डियर स्टूडेंट्स लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग. मैं D2 से क्यों शुरू करना चाहता हूँ, मैं D2 से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज ऑन अ पॉइंट लाइक दिस. मुझे क्या एम्फेसाइज करना है कि अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे बाय लार्ज साइज देन इन दैट केस हमको ये 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. कब? मुझे 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा थर्ड ईयर के एंड में. मुझे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कब? थर्ड ईयर के एंड में. सो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होंगे जो वो हमको मिलने वाले 4th ईयर से लेके 10th ईयर तक है ना. यू कैन सी दैट से द टेबल में क्लियर है. लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी रिसीव्ड इन ईयर 4 टू ईयर 10. यानी हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली. हम लोग पहले 7 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का टोटल करेंगे. पहले 7 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का टोटल करेंगे. वो जो फैक्टर आएगा उसको हम लोग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी वैल्यू आएगा उसमें से ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डिडक्ट करके हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ऐसे मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी आंसर मालूम नहीं है कि ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आता है फॉर एग्जांपल एन अमाउंट ऑफ 50 लाख. तो क्या किया जाएगा, 50 माइनस 30 यानी 20 आएगा. ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आता है सपोज कि 25 लाख. सो 25 माइनस 15 10 क्या आएगा, 15 आएगा. इंपॉर्टेंटली क्या करना है फ्रेंड्स आपको, ये मीन वैल्यू फाइंड करके पहले 7 साल के फैक्टर्स लगाने. पहले 7 साल के फैक्टर्स लगाने का मतलब क्या हुआ कि मैंने 4th ईयर से 10th ईयर तक का कैश फ्लो मैंने 3rd ईयर के एंड में डिस्काउंट किया. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू डू द आंसर. सो लेट अस आंसर. स्टेप नंबर 1 उसमें मैं लिख रहा हूं टेकिंग डिसीजन एट D2. उसमें मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ EMV 4, 5, 6. ये 3 EMV का कैलकुलेशन किया जाएगा. ये 3 EMV का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं. EMV एट 4 उसके लिए 13 इंटू 0.8 प्लस 9 इंटू 0.2
into PVIFA at the rate of 10% for 7 years. So we understand that's over here 13 into 0.2 is 10.4, 1.8 plus 10.4, that comes to 12.2 into PVIFA पहले 7 साल, यानी यहाँ से लेके यहाँ, इसी का टोटल किया ना आपने 4.86 8 5. Thank you. 40. ऐसा का वैसा किया जाएगा EMV at 5 का कैलकुलेशन. $7,582. Seven into 0.8, 5.6 plus 1. So 32.13. यानी क्या होगा, ये EMV at 5 हो जाएगा. ऐसा ही हम लोग EMV at 6 करेंगे. $4,382. $3.2 plus 0.6 यानी 3.8. $18.5. तो ये हमारा D2 शुरू हो रहा है, जिसमें क्या होगा, expand by large size, expand by small size, do not expand. $59.4, $32.13 और 18.5. ये सारे के सारे थर्ड ईयर के वैल्यू है फ्रेंड्स. उसमें से थर्ड ईयर का इन्वेस्टमेंट मैं डिडक्ट कर रहा हूँ. इट इज 30, वहां पे कितना है, वहां पे 10. तो पहले में हमको क्या मिलेगा, 29.4, 22.13 और 18.5. इस पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. चलो, सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ डिसीजन टेकन एट D2. ये हमने डिसीजन ले लिया. आई वांट समबडी ऑफ यू टू टेल मी
दैट से व्हाट मस्ट बी द EMV एट 8, EMV एट 8 मेरे को कैलकुलेट करके बताइए. चलो डन आंसर. स्टेप नंबर 2, calculation of EMV at 8. उसमें लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ EMV at 7. क्योंकि 8 के लिए मेरे को क्या EMV at 7 चाहिए, तो होपफुली सब लोगों ने कर दिया होगा EMV at 7. मैंने आपको बताया नहीं था एक्सप्रेसली, बट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन. सो 3, 2 and 28. ये जो भी आंसर इनटू क्या किया जाएगा, PVIFA at the rate of 10% for 7 years. उसके बाद would you please tell me मीन वैल्यू कितना आता है? 2.2. फैक्टर तो सेम ही है, 4.8685, ऐसा ना? कितना आता है आंसर? सॉरी 10.0. ये वापस कौन सा ईयर 3 है? 10.7. उसके बाद EMV at 8. EMV at 8 का कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ. पहले मैं थोड़ा रफ वर्किंग करके आपको समझाता हूँ, जिसके ऊपर से आपको आइडिया आ जाएगा. वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस कि सॉरी, देयर आर 60% चांसेस कि हमको क्या मिलेगा, 4 लाख का कैश फ्लो मिलेगा. सो 60% चांसेस 4 लाख. देयर आर 40% चांसेस कि हमको कैश फ्लो क्या मिलेगा, हमको कैश फ्लो मिलेगा 3 लाख. ये जो है वो हमको मिलेंगे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए. तो मैं क्या कर रहा हूं, इंटू PVIFA %60 चांसेस हमको क्या मिलेगा, 4 लाख 3 साल के लिए. सो 4 लाख इंटू PVIFA एट 10% फॉर 3 years. यानी क्या हुआ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों का तीनों कैश फ्लो मैंने क्या किया, ईयर 0 में डिस्काउंट कर दिया. प्लस मैंने यहाँ पे डिसीजन क्या लिया है, वो डिसीजन मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है. मैंने डिसीजन लिया कि हम लोग बिजनेस एक्सपांड करेंगे. बिजनेस एक्सपांशन से हमको क्या मिलेगा, 29 पॉइंट समथिंग मिलेगा ना, 29.4 ऐसा मिलेगा. सो दिस 29.4 इंटू क्या करेंगे, PVIF एट द रेट ऑफ 10% फॉर थर्ड ईयर. क्यों, क्योंकि 29.4 थर्ड ईयर का वैल्यू है, इसलिए उसको क्या किया जाएगा, थर्ड ईयर के फैक्टर से डिस्काउंट किया जाएगा. और 4 जो है ना वो रिकरिंग कैश फ्लो, तो इसको एन्युटी फैक्टर से डिवाइड किया जाएगा. देयर आर 40% चांसेस कि हमको क्या मिलेगा, कैश फ्लो मिलेगा 3 लाख का. सो 3 लाख इंटू क्या करेंगे, PVIFA एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 years. वंस अगेन ये जो वैल्यू है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, लेट से ये EMV एट 7 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, आई थिंक 10.71 इंटू PVIF एट 10% फॉर थर्ड ईयर को ऐड किया जाएगा. ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर. क्योंकि ये क्या हो गया, ईयर 0 का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, ये भी ईयर 0 का वैल्यू हो गया. इसलिए दोनों को क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है. ये भी ईयर 0 का वैल्यू है, ये भी ईयर 0 का वैल्यू है, इसलिए क्या किया जा सकता है, इसको ऐड किया जा सकता है. दैट इज द वे से वी आर रिक्वायर्ड टू डू द आंसर. चलो राइट एन आंसर. वुड यू प्लीज टेल मी द प्रोबेबिलिटी हाई कैश फ्लो 0.6 into 4 lakhs into PVIFA at 10% for 3 years plus थर्ड ईयर के एंड में क्या मिलेगा,
यानी जो भी हमने डिसीजन लिया वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा. सो इनटू PVIF at 10% फॉर थर्ड ईयर. अनदर 40% चांसेस. लोअर का कैश फ्लो कितना है? 4.4. नहीं, लोअर का कैश फ्लो. 4.4. कैश फ्लो 3 लाख. मतलब प्रोबेबिलिटी तो मेरे को पता चलेगा ना. તમે આટલું બી મને અંડર એસ્ટિમેટ ના કરો. મને ખબર છે કે હું એટલો ઇન્ટેલિજન્ટ નથી, પણ તમે પછી સાવ જ આવું કરવા દો મારી સાથે અને ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એવરી વન, દેટ ઇઝ રિયલી રુદ્ર, પછી મને બી ખરાબ લાગે. હું પછી તમે આવું કરીને પછી સોરી કહો એનો કોઈ મતલબ નથી. એટલે જો જય બી આજે ના આવ્યો તમારા કારણે છે રુદ્ર. એ જ સાચી વાત છે કે નહીં? તમે રુદ્રના ભાઈબંધ છો, વાત સાચી છે, પણ તમે આ જો રુદ્ર આવું કરે છે. पहले 3 साल का फैक्टर समेशन बताइए तो. 2.4868. थैंक यू. જય ભાઈ, તમે પાર્ટિસિપેટ કરશો કે ભાઈ તમે હજુ બી નોન કોઓપરેશનના મૂડમાં જ છો? 2.48. જય ભાઈ, નોન કોઓપરેશન કોઈ વાંધો નહીં. તમારા ક્વેરીઝના જ્યારે મેસેજ આવશે ત્યારે મને બી એવું હા, એ વખતે ભાઈ મને બી શું છે કે કામ હોઈ શકે છે કે નહીં. એટલે બધી વસ્તુ બેકગ્રાઉન્ડમાં મારા બી ચાલતી હશે કે ભાઈ જય આવા આન્સર આપે છે. આવું કરી કરીને જ આટલા સુધી પહોંચી ગયા છે. 9.95. 22.09. 7.46. 8.05. 32.04. 'जय जय जय राजपूत'. So 25.42, it is year zero cash. Right answer. ना फ्रेंड्स देखो, बाकी का आंसर बहुत ही आसान है. ना रिमेनिंग जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको करवा दिया. द रिमेनिंग आंसर इज़ वेरी सिंपल. ऑफकोर्स हम लोग अभी कर रहे हैं. देखो ये वाला EMV एट 4 आ गया, हम 8 आ गया हमारा 25.42. उस पर से 20 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे तो NPV आ जाएगा स्मॉल ब्रांच का. डू नॉट इंस्टॉल का NPV ऑफकोर्स 0 है. तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं EMV एट 3. EMV एट 3 के लिए क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बना देंगे जिसमें EMV एट 1 होगा, EMV एट 2 होगा. और इम्पोर्टेंटली इन दोनों को क्या किया जाएगा, थर्ड ईयर के एंड में डिस्काउंट किया जाएगा सबसे पहले. और फिर यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा क्या ध्यान रखने का है, रिकरिंग कैश फ्लो का एन्युटी फैक्टर से डिस्काउंट किया जाएगा. थर्ड ईयर के कैश फ्लो को हम लोग थर्ड ईयर के फैक्टर से डिस्काउंट करेंगे और उसके बाद से उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कन्वर्ट करेंगे. -50 लाख और NPV आएगा.
एक 2 मिनट के लिए सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये ऑप्शन का एनपीवी है 5.42 एंड 25.42 माइनस 20। सपोज ऐसे मैं बोल रहा हूँ इसका एनपीवी आता है 3 लाख फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इंस्टॉल स्मॉल प्लांट इफ डिमांड इज हाई देन एक्सपांड बाय लार्ज साइज। क्या बोलने का, इंस्टॉल स्मॉल प्लांट यानी आज क्या करो, हमारा जो आज का डिसीजन उसमें आगे जाके एक डिसीजन बॉक्स आने वाला है, तो तभी क्या करने का वो भी आज से बता देने का है। क्या बोलेंगे, आफ्टर 3 years इफ द डिमांड इज हाई देन एक्सपांड बाय लार्ज साइज, ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। उसके कंपैरिजन में सपोज कि आंसर ये है, सपोज कि इसका आंसर आता है फॉर एग्जांपल 10 लाख, तो क्या बोलेंगे, इंस्टॉल लार्ज प्लांट, खत्म हो गया, क्योंकि आगे को अपने को करने का नहीं है। चलो लेट अस कंप्लीट द आंसर। स्टेप नंबर 3, उस पर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ईएमवी एट 3। किसको ऑफिस जाने का देर हो रहा है तो वो जा सकता है, ठीक है ना। જે તમે દર વખતે એવું કહેતા હોય મારે મોડું થાય છે સર તમારા કારણે, સો આઈ હેવ એક્સપ્લેન। હા 11 વાગે બી એ પહેલો જાય મેં સાંજના લેક્ચર કર્યું હતું, સાંજે નહીં આવે. સવારે એવું ક્યારે કીધું? હવે સર સાંજે તો મને બી લાગતું વર્કિંગ નોટ નંબર 1, કેલ્ક્યુલેશન ઓફ EMV એટ 1 and 2। જે તમારું ધ્યાન રાખીએ તો બી તમે કેવું કરો છો, તમે એવું કીધું જ તું મને। 80% चांसेस 12 लाख का कैश फ्लो होगा, 20% चांसेस 10 लाख का कैश फ्लो होगा, इनटू क्या करेंगे PVIFA एट 10% फॉर फर्स्ट 7 years। मीन वैल्यू कितना आता है 11.6 शायद, 4.8685, कितना आता है EMV एट 1 बेटा, 56.47. थैंक यू। दिस इज अगेन ईयर 3 एंड ये તમારો પેલો આન્સર આવી ગયો। EMV at 2, 20% चांसेस कैश फ्लो होगा 8 लाख का, 80% चांसेस कैश फ्लो होगा 6 लाख का, इंटू PVIFA 10% फॉर 7 years। देखो मीन वैल्यू कितना आता है, 6.4. थैंक यू वेरी मच। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आता है 51.16. दिस इज अगेन ईयर 3 है। सिक्सटी परसेंट चांस है कैश फ्लो का 10 लाख इंटू PVIFA एट 10% फॉर 3 years प्लस 56.47 into PVIF at 10% for 3rd year। 40% चांसेस है कैश फ्लो होगा हमारा 8 लाख into PVIF 10% for 3 years plus 31.16 into PVIF at 10% for 3rd year। तीन साल का एन्युटी फैक्टर है 2.48, कितना बताया था 68, 56.47 into 0.7513।
What is 56.47 into 0.7513? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ओके. 42.43. प्लस 23.41. फाइनल आंसर 40.38 plus 17.32. 17.13. फाइनल आंसर 57.7. ये ईयर 0 का वैल्यू हो गया. कौन सा स्टेप आएगी? स्टेप नंबर 4. टेकिंग डिसीजन at D1. Install large plant, install small plant, do not install. पहले का कितना है? 57.7 माइनस 57.7. दूसरे का कितना है? 25.42 है शायद. Yes. तो सिंपल 19 आंसर आ गया. क्या? इंस्टॉल लार्ज प्लांट. ठीक है.